Dear students, today we will discuss the operation on matrices. Operation on matrices जिस तरह हम रियल नंबर्स पर ऑपरेशन करते थे, यानी एडिशन ऑफ रियल नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ रियल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर्स, इसी तरह से दिस अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इसमें भी हम एडिशन करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सो ऑन। तो पहले हम देखेंगे एडिशन। एडिशन of matrices addition of two matrices is possible only when they are of the same order. If the two matrices are of the same order, we can add them. And the two matrices should be of the same order, then we can add them. That is A plus B. If we have two matrices A and B of the same order, A plus B is defined. It is defined only when matrix A and matrix B are of the same order, say M cross N. If two matrices are of the same order M cross N, then we can add them. That means number of rows in matrix A should be equal to number of rows in matrix B, and number of columns of matrix A should be equal to number of columns of matrix B. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स एग्जांपल लेंगे हम, ए एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, B another matrix 3 0 5 1. This is also 2 cross 2 matrix. And the two matrices should be of the same order, only then we can add them. A plus, if they are of the same order, say it is 2 cross 2, so it is 3 by 3 or 3 by 3, it is 4 by 4 or 4 by 4. They should be of the same order. Number of rows in one matrix should be equal to number of rows of another matrix. Number of columns of first matrix should be equal to number of columns of second matrix. Then we can add them. That is A plus B is defined only. A plus B is defined only when A and B are of the same order. A plus B is defined. A plus B, sum of matrix sum, it is defined only when A and B matrices are of the same order. This is rule. अगर सेम ऑर्डर नहीं होगा तो हम ऐड नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ हम ऐड कर सकते हैं. ऐसे ऐड करने का तरीका क्या है? Corresponding elements of one matrix are added to the corresponding elements of another matrix. So A plus B is, इनको हम ऐड करेंगे 1 2 4 5, ऐड करेंगे 3 0 5 1. तो A plus B होगा बराबर 1 plus 3. ये मैट्रिक्स होगी 1 plus 3 4, 2 plus 0 0, 2 plus 0
equal to 2, 4 plus 5, 9, 5 plus 1, 6. So here we see that A plus B, if A and B are of 2 cross 2 order, then A plus B is also 2 cross 2 order, 2 by 2 matrix. A plus B is also 2 by 2 matrix. ये एडिशन है दो मैट्रिक्स का, तो दो मैट्रिक्स two matrices are added when they are of the same order, or we can say that if number of rows of matrix A is equal to number of rows of matrix B and number of columns of matrix A is equal to number of columns of matrix B, then we can add the two matrices A and B, or we can say that A plus B is defined. तो इसके बाद subtraction of matrices. Subtraction of matrices, और इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी इसको कहेंगे हम, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस. Here also two matrices should be of the same order. If two matrices are of the same order, then we can subtract one matrix from another matrix. For example, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है of order 7, 5, 3, 9 of order 2 by 2. ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A of order 2 by 2, that is it has 2 rows and 2 columns, and another matrix B is of the same order, it should also be of the same order. For example, it is 3, 8, 7 and 9. This should also be 2 cross 2, 2 by 2 matrix, or 3 by 3 or 4 by 4. The order should be same. Then A minus B is defined. यानी हम सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी. तो A माइनस B इज, इनको हम सब्ट्रैक्ट ऐसे कर सकते हैं 7, 5, 3, 9. तो पहले हम ये मैट्रिक्स लिखेंगे माइनस 3, 8, 7, 9. तो सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दैट इज दिस इज A11 एलिमेंट, इसमें से A11 इसका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ऐसे हम कर सकते हैं, या ऐसे हम कर सकते हैं, या हम लिखेंगे भी 7 माइनस 3 एक एलिमेंट, 5 माइनस 8 एक एलिमेंट, 3 माइनस 7 एक एलिमेंट, 9 माइनस 9. So this is also of the same, this 2 cross 2 by 2, it is 2 by 2, this will also be of same order. तो डिफरेंस इनका क्या आएगा, 7 माइनस 3 4, 5 माइनस 8 माइनस 3, 3 माइनस 7 माइनस 4, 9 माइनस 9 0. We see here difference of two matrices of the same order. The difference is also of the same order, it is also 2 by 2. इनमें भी दो रोज और दो कॉलम्स थे, 2 रोज और 2 कॉलम्स. तो जो इसमें हमें डिफरेंस मिला उसमें भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं. तो डिफरेंस हम सब्ट्रैक्ट हम ऐसे कर सकते हैं. ये रहा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस. सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे हम कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी. तो इसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स एडिशन.
प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, और इसी तरह से हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें है मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन पहली प्रॉपर्टी इसकी ये कम्यूटेटिव होती है। मैट्रिक्स एडिशन is commutative. It is commutative. That means commutative law holds that if we have two matrices of same order A and B are two matrices, A plus B is always equal to B plus A. This is commutative law. This is commutative law. तो इसी तरह से अगर हम ये मैट्रिक्स एडिशन है, मैट्रिक्स एडिशन, तो यहां हम देखेंगे मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, यहां अगर मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन, और we can say that it is commutative law. Commutative law holds good. Commutative law holds good in matrix addition. तो सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में ये नहीं होता है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो होता है is not commutative, ये commutative नहीं होता है, it is not commutative. That is, if A minus B is not equal to B minus A, they will be of the same, they will be different. A minus B, if we take A minus B, it will be different than B minus A. So A minus B is not equal to B minus A. Commutative law does not hold in matrix subtraction. Commutative law does not hold. और इसी तरह से अगर हम देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता था A प्लस बी, ये मिलता है हमें B प्लस A के बराबर, और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में A माइनस B B माइनस A के बराबर नहीं होता है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो एसोसिएटिव लॉ, मैट्रिक्स एडिशन में एसोसिएटिव लॉ देखते हैं क्या होगा। अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स हैं A ऑफ द सेम ऑर्डर, A B, A प्लस B प्लस C, अगर हम यहाँ करेंगे A प्लस बी, इसको ब्रैकेट में रखेंगे A प्लस बी, फिर करेंगे इसको ऐड C के साथ, तो ये बराबर होगा इसके A प्लस B प्लस C, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, तो इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ आल्सो होल्ड्स गुड। एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स गुड in matrix addition। तो यहां अगर हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन जो हम देखते हैं, सब्ट्रैक्शन जिस तरह A प्लस बी, पहले हमने A प्लस बी किया, फिर इसको प्लस C करेंगे, या A प्लस B प्लस C, पहले B प्लस C करेंगे, फिर उसको A के साथ ऐड करेंगे। ये द थ्री मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो जाता है। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इसमें होल्ड ये नहीं होता, इज नॉट एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव नहीं होता है। दैट इज A, ये नहीं होता है बराबर A माइनस बी माइनस सी, ये इसके बराबर नहीं होता है। A माइनस बी माइनस सी, ये इसके बराबर नहीं होता है, यानी ये एसोसिएटिव नहीं होता। अगर
तीनों मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर होंगे तब भी ये नहीं होता है। ए माइनस बी, पहले हम ए माइनस बी करेंगे, फिर इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसमें सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बराबर नहीं हमें आएगा ए माइनस, अगर पहले इन दो का सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसको सब्ट्रैक्ट, फिर उसको ए में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल नॉट होल्ड गुड। सो मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो तीसरी प्रॉपर्टी, existence of identity, existence of, we can say, additive identity, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये इस तरह अगर हम इसमें यानी एक मैट्रिक्स में हम क्या मैट्रिक्स ऐड करेंगे ताकि वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही रहेगा। अगर ए में जिस तरह हम एडिटिव उसमें नंबर्स में होता है 1 + 0 = 1 और 0 + 1 = 1, तो 0 इसमें यहाँ क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें यहाँ कौन सी मैट्रिक्स हम लेंगे कि वो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी ए मैट्रिक्स में हम कौन सी मैट्रिक्स ऐड करेंगे ताकि हमें ए ही मैट्रिक्स बरकरार रहेगी। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस अगर करेंगे हम नल मैट्रिक्स को हम ओ से डिनोट करते हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, ए के बराबर। और अगर इसको हम यानी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m × n एंड दिस नल मैट्रिक्स शुड बी आल्सो ऑफ सेम ऑर्डर m × n, यानी ये जो ए मैट्रिक्स है जो ऑर्डर इसका होगा यही ऑर्डर इस नल मैट्रिक्स यानी 0 मैट्रिक्स का होना चाहिए। तो ये हमें ए मैट्रिक्स सीधे ऑफ सेम ऑर्डर वापस मिलेगी हमें। तो या हम नल मैट्रिक्स में ए जब ऐड करेंगे तब भी हमें ए ही मिलेगा, दैट्स a + 0 = 0 + a = a, ये ए ही हमें वापस देगी। तो दिस इज दैट इज नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी for any matrix A, that is this is null matrix or 0 matrix, it should be of the same order A. Null matrix is additive identity for any matrix. तो इसी तरह हम एडिशन में सब्ट्रैक्शन में देखेंगे, क्या सब्ट्रैक्शन में ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हो सकता है। तो सो वी कैन से दैट कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जो हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, यानी सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं होती है। सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें ये एग्जिस्ट नहीं होती है। इसमें ये हमें इसकी ये जो तीसरी प्रॉपर्टी है, तो सब्ट्रैक्शन में ये सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती है, जिसमें जिस तरह यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी होती है तो यहाँ सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती है। यानी कोई ऐसी ये बराबर नहीं होगा। अगर हम करेंगे ए माइनस करेंगे नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर तो ये हमें इसके बराबर नहीं होगा, यानी नल मैट्रिक्स माइनस ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये ए नहीं देगा बराबर, ये वापस ए ही नहीं मिलेगा हमें। तो ये रहे 3 प्रॉपर्टीज, ये इसके बराबर नहीं होगा। तो
अब हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टी जिसमें एग्जिस्टेंस ऑफ चौथी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। चौथी प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स एडिशन की फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ additive इनवर्स। क्या इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो सकता है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अगर हम एक मैट्रिक्स ए ऑफ द सेम ऑर्डर इसमें ऐड करेंगे माइनस ए, इट विल गिव अस 0 और इट विल गिव 0 मैट्रिक्स। ये बराबर होगा अगर हम माइनस ए इसमें हम ऐड करेंगे ए। So existence of additive inverse, there is existence of additive inverse, that is a, इसमें अगर हम ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ ए माइनस ए, ये बराबर होगा अगर हम पहले लेंगे ये माइनस ए प्लस इसमें करेंगे ए, तो ये हमें 0 मैट्रिक्स ही देगा, नल मैट्रिक्स ही देगा। तो therefore we can say that negative a is additive inverse for any matrix A. So we can say that negative A is additive inverse of any matrix A. Negative A. So no, इसमें subtraction of matrices जो होता है इसमें no subtractive, इसमें ऐसा subtractive, no subtractive inverse exists for any matrix A. नो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स, जिस तरह इसमें है, इसमें एक मैट्रिक्स अगर हम एक मैट्रिक्स लेंगे तो उसमें अगर हम इसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो वो हमें 0 के बराबर मिलेगा, या नेगेटिव ए में हम ए ऐड करेंगे तो 0 मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स मिलेगी हमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं नेगेटिव ए इज एडिटिव इनवर्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट वी कैन से दैट नो सब्ट्रैक्टिव इनवर्स एग्जिस्ट्स फॉर एनी मैट्रिक्स ए। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन के हवाले से। तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। Before another property, that is multiplication of matrices. Before multiplication of matrices हम देखेंगे multiplication of matrix, multiplication of a matrix by a scalar, scalar means any number, अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर, किसी कांस्टेंट या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 5
3, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल किसी नंबर से हम, किसी स्केलर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है। फॉर एग्जांपल लेट, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो हम स्केलर लेंगे कोई a, हम 2 से इसको ज़रब करेंगे या 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3a किसके बराबर होगा, 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 5 3। तो 3 से ईच एलिमेंट is multiplied by 3, so we will get 3 1 is 3 2 6 3 5 is 15 3 3 is 9. So this is multiplication by a scalar or by any number. This is multiplication of matrix by a scalar, किसी भी नंबर से, या हम लेमड़ा a कर सकते हैं। लेमड़ा से अगर करेंगे हम तो हम इसको लेमड़ा से भी मल्टीप्लाई करेंगे इस a को, यही मैट्रिक्स लेंगे तो हम लेमड़ा इंटू 1 लेमड़ा 2 लेमड़ा, इसी तरह से इसको 5 से लेमड़ा करें 5 इंटू लेमड़ा 3 इंटू लेमड़ा वायर ए हमने यही मैट्रिक्स ली, कौन सी, जो हमने पहले एग्जांपल में ली 1 2 5 3। यानी इसको अगर हम लेमड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई स्केलर क्वांटिटी लेंगे, लेमड़ा लेंगे के लेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को हम लेमड़ा किया है तो 1 इंटू लेमड़ा दैट इज़ 1 लेमड़ा, और 1 वी कैन नॉट राइट 1 हियर, 2 लेमड़ा। इसी तरह से 5 को लेमड़ा से करेंगे 5 लेमड़ा, और 3 को 3 लेमड़ा। तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, बाय एनी कांस्टेंट और बाय ए स्केलर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, तो प्रॉपर्टीज क्या है इसमें। एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी कांस्टेंट k से या किसी स्केलर से हम a प्लस b मैट्रिक्स है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये किसके बराबर होगा, k इंटू a प्लस k इंटू b। ये एक प्रॉपर्टी है। अगर हम इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a को प्लस k से b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये k इंटू ए प्लस बी इक्वल टू के ए प्लस के बी। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, बुक वाले ने ये प्रॉपर्टी दी है। वैसे ये तो के प्लस एल, अगर हम ए को के प्लस एल यानी 2 कांस्टेंट से इनका ऐड करेंगे तो इस ए को करेंगे मल्टीप्लाई से, तो ये क्या मिलेगा हमें, के ए, ये भी ऐसा ही है, के ए प्लस के एल। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर, now we can take some example। अगर हमारे पास एडिशन की, हम एडिशन या हम लेंगे एक एग्जाम्पल, टेक्स्ट बुक पर है, if A is a matrix, हम लेंगे 8 0 टेक्स्ट बुक की है ये, 4 -2 3 6, और B एक और मैट्रिक्स है 2 पहला रो -2, सेकंड रो 4 2, थर्ड रो -5 1। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 8 ऑन टेक्स्ट बुक। तो आपको क्या करना है, इफ दिस मैट्रिक्स B is and B is this matrix, then find matrix A, then find matrix A such that matrix equation 2a plus 3x is equal to 5b। तो
ये सॉल्यूशन हम इस फिर एक्सरसाइज भी ऐसे ही क्वेश्चन, एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. When you will do these examples, you can do exercise of 3.2 yourself easily. तो हम देखेंगे यहाँ 2a plus 3x is equal to 5. This is matrix equation. तो 2 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, a मैट्रिक्स को 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2a किसके बराबर, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो क्या मिलेगा, हम वक्त की कमी है, 2 into 8 16, 2 into 0 0, 2 into 4 8, 2 into -2 -4, 2 into 3 6, 2 into 6 12. ये मैट्रिक्स है. प्लस एक्स हमें निकालना है, 3x ऐसे ही रखेंगे. 5 into b, ये मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमें, 5 into b, 5 2 10, 5 2 10 -10, 5 4 20, 5 2 10, 5 5 -25, 5 1 5. तो दिस इज द मैट्रिक्स. तो अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है. 3x ऐसे ही रहने एज इट इज. तो इट इज 10 -10, इट इज 20, इट इज 10, इट इज -25 5. तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें ट्रांसफर करेंगे इस साइड में, और वी विल शिफ्ट दिस मैट्रिक्स टू दिस साइड. तो ये बनेगी 16 0, सेकंड रो 8 -4, थर्ड रो 6 12. तो यहाँ हमें सब्ट्रैक्शन भी आ गया, एडिशन भी आ गया. तो बाय मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी इसमें आ गया इस एग्जांपल में. तो हमें x का वैल्यू निकालना है. तो पहले हम देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें 10 माइनस इसको सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट, दीज आर ऑफ द सेम ऑर्डर. 3 × 2, दिस इज आल्सो 3 × 2, दिस इज आल्सो 3 × 2, दिस इज 3 × 2. Subtraction is defined. So we can subtract them. 10 minus 16 minus 6, 10 minus 0 10, 20 minus 8 12, 10 माइनस यहाँ पर है, तो 10 + 4 हो गया 14, -25 -6, इट इज -31, -5 -12, it will be equal to -7. This is 3x. Now x किसके बराबर आएगा, x 3 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1/3, 1/3 सेम मैट्रिक्स, -6 10 12 14 -31 -7. This will be again equal to 3, इसको डिवाइड करना है, -6 डिवाइड बाई 3, इट विल बी इक्वल टू -2. 10 डिवाइड बाई 3, डिवीजन बराबर नहीं होगा तो ऐसे ही लिखेंगे, 10 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइड बाई 3 4, 14 डिवाइड बाई 3 ऐसे ही 14 डिवाइड बाई 3, एंड -31 डिवाइड बाई 3, -7 divided by 3. So this is x. So x हमारे पास मैट्रिक्स, हमें x ही निकालनी थी. तो x हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गई, -2 10/3 4 14/3 -31/3 and -7/3. This is the required, and this is the answer. और दिस इज इट इज आंसर. तो ये एग्जांपल हमने की. इसमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स भी आ गया, इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ गया, तो इसमें ये मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर भी आ गया. तो ऐसे ऐसे एग्जांपल अगर हम टेक्स्ट बुक पर देखेंगे तो एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक है वो आसान हो जाएगी फिर. तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे. बस आज इतना ही.